Good evening and welcome. I'm Shashidhar. I welcome you all to the Spirituality and Healing Meet. So welcome Tony, welcome Preeti ji, welcome Kavan, and welcome Amit ji. Good evening, Shashi. Namaskar and good evening to all of you. Okay, so how are we? We are all excited? How many of you are excited? Yep. Very good. ओके सो क्या क्या हुआ पिछले हफ्ते हमने काफ़ी अच्छी एक डिस्कशन करी थी, काफ़ी कुछ हमने इंसाइट्स लिए थे. एंड हाउ वाज द वीक सिंस लास्ट मीटिंग? ब्रेकडाउन्स, ब्रेक थ्रूज, सेलिंग थ्रू, सेम लेवल पे चल रहा है? क्या कौन शेयर करना चाहेंगे? या यू आर ऑन म्यूट, सो एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक, you will have to unmute yourself and then speak, right? Okay, and Amit ji, welcome. आप पहली बार आए हैं and he is. Namaskar, sir. Thank you for having me here. I look forward. Thank you. Yeah, it's really a great honor for you to for me that you are here, and I hope just for the benefit of others, let me just introduce. Amit ji has been in one of the major programs with me, and he's a very close friend of my Sanjeev Garg. तो ये काफ़ी अपने जर्नी में काफ़ी आगे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट ही इज हियर एंड आई एम श्योर ही विल शेयर हिज व्यूज एंड ओपिनियंस एट द राइट टाइम so that we all can benefit. So welcome Amit ji. Thank you, sir. I look forward to learn. Yes. So now coming back to the discussion that we were having last week. Last week we had a very fantastic, in fact, a lot of breakthroughs and a lot of insights, right? कुछ बोल रहे हैं अमित जी? No, not to you. I'm just finishing a call. Sorry. Okay, fine. Great, good. तो last time हमने काफी कुछ discuss किया था, and I hope there were a lot of insights coming in from all the people, right? And if you recall our discussion, I will just जरा सा मैं spark लगा देता हूँ, ignite कर देता हूँ उस discussion को. तो last time हमने देखा था how you can create heaven and hell in your life on this planet Earth, right? तो याद आ गया सबको, ट्रिगर हो गया? हाँ, कैसे आप अपनी जिंदगी में हेवन और हेल क्रिएट करते हैं? दैट वाज द डिस्कशन दैट वी हैड लास्ट टाइम एंड वी विल बिल्ड ऑन दैट. तो मीनवाइल अगर आपके सवाल हैं कोई तो आप जरूर पूछिए. पिछले हफ्ते से जो हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, और हमने एक और बात करी थी, जो हमारे लाइफ की सिचुएशंस हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ऑल दीज सिचुएशंस आर कमिंग फ्रॉम आवर कार्मिक अकाउंट्स एंड आवर पास्ट लाइफ्स कर्मा, करेक्ट? तो पास्ट लाइफ कर्मा से हमारी सिचुएशंस बन रही हैं, एंड उस सिचुएशंस में हम अपनी हेवन और हेल को कैसे क्रिएट करते हैं. दिस वाज द जिस्ट ऑफ द डिस्कशन वी वर हैविंग लास्ट टाइम. परफेक्ट? एवरीबॉडी गॉट कनेक्टेड? Yeah, perfect. So Amit ji, just that was an introduction for you. This is what was the major discussion, and people were discussing from their lives, and I was giving them some inputs, right? So who wants to share what opened up, what was clear, कहाँ doubt आ रहा है, और कहाँ आपको लग रहा है कि सब कुछ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है? ऐसे भी थॉट्स आ सकते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले तो आपकी मैं राय जानना चाहूंगा कि वेयर आर यू राइट नाउ विद दैट डिस्कशन? इफ यू फुल्ली एग्री विद इट एंड इफ यू कैन सी दैट हैपनिंग इन योर लाइफ, ग्रेट. तो आपको इंसाइट मिल गई, अब आपको उसमें एक्शन में लाना है, करेक्ट? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट एंड वी कैन मूव ऑन. सो वेलकम स्मृति. Yeah, she's joining now. So anybody who wants to share, and meanwhile other people will join in and then we will move on. Okay? Or anything else if you want to ask. And one more thing, in fact, last week Tony, you had requested कि हम थोड़ा सा meditation अगर कर पाएं, right? So I have that in mind. So in case we have some time today, we will definitely do a small meditation of say 5 minutes, 10 minutes, just to brush up the basics, so that if anybody is not able to do meditation या meditation नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो उनको कुछ basic tips मिल जाएं और वो आगे meditate कर लें. Okay? तो meanwhile, how many of you are doing meditation of your own or with the guided meditations जो मैंने या किसी और ने YouTube में डाली हैं, उनको देख के guided meditation कौन-कौन कर रहे हैं? तो Tony, you are doing that, very good. प्रीति जी आप कर रही हैं. Kavan, how about you? You are doing that? But it's not very regular, है, मतलब it's off and on हो जाता है. That's fine. That's up to you. आपकी frequency पे. तो कभी time मिलता है, कभी नहीं मिलता है, इतना मतलब like that way. Correct. So meditation is actually your connection with the divine. Correct. Yes. So instead of connecting with people, it is always better to connect with the divine.
right? Okay. Because he is never busy. Correct. The moment you dial him, you will get connected because he is always there for you. बाकी लोगों के साथ आपको मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी, इस जूम कॉल के लिए भी आपको मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी, right? So you will get connected with me only during this call, or maybe otherwise we can talk, right? But divine के साथ कोई problem नहीं है. Divine is always there for you anytime. All the lines are free. So meditation is your connection with the divine. Don't forget it. Get that on topmost priority. Do that first thing in the morning. Do that last thing in the morning. Do that anytime in the morning, anytime during the day. Okay. That will give you a lot of power. Okay. So yes, तो आप दोनों कर रहे हैं. And Kavan, how about you? Are you doing that meditation part? नहीं कर रहे हैं. Okay. So Kavan, you are on mute by the way. Huh? If you want to say something, you will have to unmute yourself. No, sir. No, sir. I'm not. Fine. That's fine. So try that. As I said, meditation is your way of connecting, a personal connection with the divine. I would say that. It's not a general connection. It's a personal connection. आपका one-to-one भगवान के साथ हो रहा है. Correct? That is important. Yes. Because see, your spiritual growth will move in one direction. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले भगवान के साथ कोई कनेक्शन होता ही नहीं है. Correct? So we are struggling. रो रहे हैं, पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, जी रहे हैं. Okay? थोड़ी देर बाद हम भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. And then we will start asking for things from the God. I want perfect health, I want perfect wealth, I want perfect relationships, I want increment, job promotion, whatever. So these three areas में health, wealth and relationships में हम लोगों भगवान से बहुत कुछ मांगना शुरू कर देते, जिसको बोलते वरदान मान लो से. ठीक है? तो आपने थोड़ा सा भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ा और भगवान से चीजें मांगनी शुरू कर दी. करेक्ट? यही करते हैं हम. मंदिर में जाके क्या करते हैं? यही करते हैं. किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाके क्या करते हैं? यही करते हैं कि परफेक्ट हेल्थ चाहिए, उसी के करस्पॉन्डिंग कुछ होगा. बीमारी से लड़ रहे हो तो बीमारी दूर हो जाए, और अच्छी हेल्थ है तो अच्छी हेल्थ बनी रहे अपनी और लोगों के लिए, अपने परिवार में जो लोग हैं उनके लिए. राइट? सेकंड, वेल्थ के अराउंड होगा आपका. सारी प्रेयर्स जो आ रही हैं, ये दे दो वो दे दो, भगवान से यही करते हैं हम लोग. राइट? या फिर होगा रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप बन जाए, वो रिलेशनशिप थोड़ी और अच्छी हो जाए, इसमें थोड़ा सा प्यार मिल जाए, इसमें थोड़ा सा प्यार दे दूं, यही सब होता है. राइट? तो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में हम भगवान से मांग रहे हैं. ये अगली स्टेज होती है. इससे भी ऊपर वाली स्टेज में जाएंगे तो हम कहेंगे भगवान ये सब छोड़ दो, मुझे तो आप ही चाहिए हो. Correct? So when you get that connection, that is when this is possible. If you don't do the basic connection, आप connect ही नहीं कर रहे हो तो आप struggle कर रहे हो लाइफ में. Struggle करना ही है आपने. If there is no divine connection, you will struggle. Obvious. Because आप बहुत limited power से खेल रहे हो. आपके पास पूरी यूनिवर्सल पावर्स हैं, आप अपने एक छोटे से इंडिविजुअल लेवल पे खेल रहे हो. मतलब आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए. That is the level of life that you are living. If you're happy with it, I have no suggestions on that. But in case you're not happy, if you're struggling, if you want to move ahead, get your connection with the divine. That is the way to move ahead. Any success in life will make sense or give you fulfillment only when the connection with the divine and the spiritual journey is on. Making a very bold statement, but that's fact. It's a truth. अपनी लाइफ में भी आप चेक करके देखिए, जब भी आप भगवान से कनेक्शन से हटा के अपने दम पे कुछ चलाने की कोशिश करेंगे, बहुत स्ट्रगल होगी. अब प्रीति जी ने पिछले 3 हफ्ते से यही शेयर कर रही हैं वो, कि जब तक वो अपने दम पे कुछ करना चाह रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और जहां उन्होंने सरेंडर किया टू द डिवाइन कि भगवान तेरे भरोसे छोड़ दिया सब कुछ, अपने कर्म करूंगी लेकिन रिजल्ट तेरे भरोसे छोड़ दिया, रिजल्ट अपने आप आने शुरू हो गए. In fact, if you have seen one of my posts which I put 2-3 days before, the moment you give up your जो आपकी जिद है कंट्रोल करने की, किसी चीज को कंट्रोल करने की, लाइफ सिचुएशन को कंट्रोल करने की, लोगों को कंट्रोल करने की, जब वो आप जिद छोड़ देते हो, उसको गिव अप कर देते हो, अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं which are magical. And that is the key to living a powerful life, right? Okay, तो मैं शुरू में ही आपके शेयरिंग लिए बिना थोड़ा सा ज्ञान दे दिया आपको. So let me understand. Anybody who wants to share? Anybody who wants to share? तो रेणु प्रभा जी, welcome, good evening, and Baljinder Kaur from Pune. Yes, so she is the only one who is from outside Delhi. All the others are from Delhi, right? Okay, so Baljinder, welcome, and Renu ji, welcome. If you are comfortable, you can switch your video on. सर मैं 10 मिनट्स के बाद आपसे बात करूंगी. Sure, you're most welcome. Take your time. We are there. Okay, so anybody else who wants to share?
से वन वे होगा ना तो मेरे को एनर्जी नहीं मिलती शशि है। भैया, हाँ शशि भैया, आपने जो अभी मेरे वाली बात बोली ना, तो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 3 महीने पहले तक आई वाज स्टक विद समथिंग व्हिच यू नो एंड संजीव नोज। तो संजीव से मेरी 1-to-1 बात हो रही थी, तो संजीव ने कहा भाभी यू आर स्पिरिचुअली एक्टिव एंड यू शुड ओनली सरेंडर, छोड़ दो कि आप क्या कर सकते हो। एंड दैट वाज द टाइम, द वेरी थॉट, उसके साथ बात करते करते वो थॉट आ गया एंड मैंने छोड़ दिया सब कुछ। एंड सीरियसली आपको पता ही है उसके बाद से चीजें फॉलिंग इन प्लेस, एट पीस आफ्टर दैट। एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप ये सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्सल लॉस को समझ जाएंगे तो स्ट्रगल करना ही नहीं है लाइफ में। स्ट्रगल का मतलब क्या है? पानी ऐसे बह रहा है और आप उसका उल्टा जा रहे हो। उन्होंने कहा एक्यूमुलेशन एंड ऑल इज नॉट मेंट फॉर यू, यू जस्ट लीव एवरीथिंग फॉर डिवाइन। क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए एक्यूमुलेशन वगैरह बनी नहीं है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आज तक भी तो भगवान आपका चला रहा है, तो आगे भी भगवान चलाता रहेगा। मैंने कहा फाइन, दैट्स अ वाइज थॉट। एंड एक्यूमुलेशन इज ए साइन ऑफ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी कि Yeah. आगे क्या होगा, इकट्ठा कर लो। अरे you need to understand the basic rules. First of all, have faith in the divine, आपका fear कम हो जाएगा। Okay? Uncertainty में deal करना ही वहीं पे है actual life. Certainty is coming from the past. Uncertainty is coming from the future. Freedom. तो freedom के साथ अगर आप उड़ोगे, लाइफ में जियोगे, तब आपको uncertainty के साथ ही deal करना है। What is certain, what is known is the past. वो mind का game है, mind से ऊपर उठना है। You have to dwell in possibilities. You have to dwell in uncertainties. That is where the learning is. That is where the growth is. Perfect. Preeti ji, wonderful sharing and great results. And I'm sure the results are still coming in and still going on, right? Perfect. It's a perfect track. Perfect. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. All right. And इसी में एक चीज और बताऊंगा. When we are talking of surrender to the divine, इसमें एक और चीज होती है जो हम बोलते हैं कि हमको जो पकड़ के रखने की जो हमको हमारी आदत है। जैसे मुट्ठी में हम पकड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना मुट्ठी में है। मुट्ठी अगर खोल दोगे, let go करो उसे, and then you see the kind of blessings that you get from the divine. It is immense. It's like आप चम्मच लेके खड़े हो और आपको पूरा ब्रह्मांड सब कुछ देने को तैयार है, आप एक चम्मच में पानी भरने के चक्कर में पड़े हो। तो leave that spoon, अपने हम मुट्ठी को खोल दो। एक चम्मच नहीं है, आपके लिए पूरा सागर है वहां पे। गोते खाओ, स्विमिंग करो, एंजॉय करो लाइफ को। बट यू हैव टू फर्स्ट टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैविंग द फेथ इन द डिवाइन एंड लेट गो। लेट गो योर अटैचमेंट। लेट गो फिजिकली कुछ नहीं करना है। सब कुछ लाइफ में, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है। संन्यास वैराग्य का मतलब सही से समझना है। यही लाइफ में रहना है, सब कुछ एंजॉय करना है। All the worldly pleasures are yours, all the worldly success is yours for you to enjoy, but don't get attached to it. Non-attachment के साथ life को जियो। Enjoy the perfect health, enjoy perfect wealth, enjoy world tours, enjoy everything that you can and you want. Family के साथ enjoy करो, सब कुछ enjoy करो। Enjoy the luxuries. You should not have to live in misery. You don't have to live in poverty. Okay? तो wealth, affluence, opulence, जिस मर्जी लेवल पे आप जाना चाहो जाओ। क्रिएट करो, इंटेंड करो, मिलेगा। बट डोंट गेट अटैच्ड टू इट। फॉलो द स्पिरिचुअल लॉस। कुछ चाहिए तो फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। ओके, इट इज नॉट ओनली फॉर material possessions, it's also for everything. You want love, start giving love. You want happiness, start making people happy. If you want wealth, start giving. वेल्थ में भी अगर आपको चाहिए होगा 1 लाख या 10 लाख चाहिए, 10 रुपए तो दे सकते हो। स्टार्ट विद दैट। तो अगर आप किसी को एक ब्रेड भी खरीद के दे रहे हो, एक बिस्किट भी खरीद के दे देते हो किसी को, सड़क पे कोई जा रहा है तो उसको अगर जो मांग रहा है अगर कुछ से आप दे रहे हो, दिस इज लॉ ऑफ गिविंग। यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ गिविंग। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग विल बी इन मोशन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। हाउ मेनी ऑफ अस फॉलो दैट? हाँ, हम कहते हैं हमको पैसा चाहिए तो जब तक 1 लाख नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं करूंगा, सब बचाओ, सब एक्यूमुलेट करो। पैसे आए तिजोरी में, पैसे आए बैंक में, कुछ नहीं इकट्ठा करना। इकट्ठा किस लिए कर रहे हो? कब निकलोगे यही नहीं मालूम है, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? राइट? It doesn't make sense. So we have to understand the basic rules, apply that, enjoy life, and then create a magical life for us and for all the people in our life. Okay? यहाँ पे एक छोटा सा बस 1 सेकंड का एग्जांपल देना चाहूंगा कि Sure, welcome. 2017 में मैंने एक चीज को लेट गो किया और उसको शिद्दत से सिर्फ मैनिफेस्ट किया प्रेयर्स में, विद सम
only on the positive side, क्योंकि not negative side. तो let go कर दिया 2017 में. वो चीज जो मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत थी उन दिनों, in those 3 years, that came back and realized for me in my life in September 2019. तो 1.25 साल हो गया और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है. और वो तब हुई जब मैंने लेट गो किया, जब मैंने उसको दूर से नर्चर किया. तो ये बहुत, it changed my life, and I repeat it, this was the biggest unfulfilled desire that anybody can have in his life. For me it was, and took 3.5 years, it came back. Let go was the big mantra, a contributor for that realization to happen in my life. Wonderful, perfect. Thank you, Amit ji, for sharing Apart from that. various other things that I thought processes that I used, like as you rightly said, miracle, magic, चम्मच नहीं open. So बहुत miracle God level पे जाके अपने आप को सोचना पड़ा कि ये हो सकता है, और वो. Absolutely perfect and wonderful sharing for that. So practically ये होता है, हमको अक्सर ये लगता है कि यार ये बड़े लोग हैं, कुछ बोल जाते हैं, you know, like उनकी लाइफ में होता होगा, हमारी लाइफ में नहीं हो सकता है. It starts from here. You have no idea where your life will end up. 40 years from now, 50 years from now, maybe next birth. Why this life? It's a series of births that you're taking. इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर टारगेट बड़ा रखो. आज ही कल ही मैंने पढ़ा था, एंड देन मैंने आज ही उसे पोस्ट भी करी. मेरे दिमाग में जो आता है मैं उसे फटाफट अप्लाई करने के लिए मैं कहीं ना कहीं पोस्ट कर देता हूँ, सो दैट इट इज रजिस्टर्ड इन माय माइंड, राइट. तो देख रहे थे विजन क्या है, विजन के ऊपर बात कर रहा था किसी से, अपने एक हीली से, एंड दिस टॉपिक केम अप. तो विजन है, व्हेन यू आर सीइंग द सन बिफोर इट इज शाइनिंग, दैट इज विजन. सन आएगा ही मालूम, अभी किसी को दिखा नहीं है पर आपको दिख गया है वो. So vision is seeing the sun when it is not shining, correct? It's always there. It's there for you to get it, correct? So that is where you need to understand. So okay, let me ask, how many of you have vision in life? By the way, vision की बात आई है तो एक vision की बात कर ही लेते हैं. कितने लोगों का लाइफ में विजन क्लियर है? अक्सर क्या होता है मैं बताता हूँ. Good. So थोड़ी सी शेयरिंग ले लें. If you just want to share, it will open up for some things, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं विजन क्यों बनाए. You know, people are in that mode. Vision से क्या होता है? Time waste, you know, like that. So let us have some understanding. तो कौन share करना चाहेंगे? प्रीति जी, you want to go ahead? Share your vision. My sole purpose of this body is basically to serve humanity, which I am doing from past so many years, trying to contribute whatever I can. It may not be big, but definitely someday I'll do a big to contribute something to the humanity. Perfect, बढ़िया, great. अमित जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, so जो मैनिफेस्टेशन जो मेरा रियलाइज हुआ, जिसमें आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ही पाए, जिसका नाम हमने यूनियन रखा है. So that was the beginning. और वो यूनियन का एक एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव वही है कि टू प्रमोट, स्प्रेड द स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग, सो दैट in a different way. मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम NGO पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, सोशल रिफॉर्म करते हैं, एजुकेशन सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम या सिविक सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं. दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच, छोटे 50. सो उस इन कंट्रास्ट टू इट, अगर ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच रखें, जिसमें पूरा समाज का 7.7 बिलियन लोगों का चित्त इस तरह से चेंज कर दें ताकि उनको लगे सत्युग अभी हमारे ही लाइफ में आ सकता है, और इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. Anybody can achieve Satyug today. So I have a very specific vision to be able to make people realize of their powers, the way you just said, God है चम्मच छोटी चीज है, and to teach people that miracles do happen. अगर हम पॉजिटिव शिद्दत से एक चीज को मैनिफेस्ट करना चाहें वो हो सकती है. So I think मेरा वो फोकस है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, जैसे प्रीति जी ने बोला, बट उसमें भी मैं एम लिटिल मोर फोकस्ड कि मुझे NGO वर्क नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल जिसमें इंडिविजुअल लोगों की, तो यही विजन है कि मैं इस चीज को और स्प्रेड कर पाऊं. लॉ ऑफ कर्मास को बताने का, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड को बताने का, यिन एंड यांग, गुड इन द बैड, बैड इन द गुड. ये 4-5 जो थ्योरीज हैं, अगर लोगों को समझ में आ जाए तो सब आज के ही महीने में, इसी साल में ट्रांसफॉर्म होकर सत्युग में जी सकते हैं, जैसा कि हमारे हितेश जी बोलते हैं. Perfect and wonderful. Let's first acknowledge Amit ji for his great sharing and a great vision.
and Preeti ji also wonderful vision, Preeti ji. So let me just share something which Amit ji has just said, and maybe सब लोगों को ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा या समझ में आया नहीं होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं. We are talking of project युग परिवर्तन. कलयुग से सतयुग में जाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अमित जी, मैं और संजीव जी ऑलरेडी उसमें पार्ट ले चुके हैं. उनके 4 मेजर लेवल्स थे प्रोग्राम्स के, वो सारे प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं. So that is ingrained into our blood. So our blood, if you test, will be PYP, Project युग परिवर्तन, right? And उनके जो चीफ मेंटर हैं, जो युग पुरुष इनको हम बुलाते हैं, चीफ मेंटर जो हैं, वो हैं हितेशी. तो उनकी बात कर रहे हैं. तो उनका एक वो प्रोजेक्ट है जिनके हम उनके प्रोग्राम्स कर चुके हैं. So we are all aligned with that, and we are all doing in our own way, of course, guided by him. We have taken up different projects. So उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला प्रोग्राम भी अगर आप देखेंगे वहीं से शुरू हुआ है. And taking my healing, because as a spiritual healer, I see myself as one of the greatest spiritual healers of all times. That is my vision. By the time I leave this body, or maybe even the next birth I come back, I am one of the greatest miracle healers on this planet Earth across all times. So that is my best incarnation that I am taking on. And in that context, I have created the whole process. So this also actually happened after that. So this was a manifestation, this program that we are doing. And also the kind of healings that I have done has gone to a tremendous level of, insights and results which are coming in. So just one healing session from to any of the healies are producing such a magical results जो पहले 6 महीने 3 महीने में नहीं होते थे, वो वाले रिजल्ट्स आजकल हीलिंग्स को मिल रहे हैं मेरे एक हीलिंग साइकिल से. सो दैट इज द काइंड ऑफ पावर आई हैव जनरेटेड. सो आई नो व्हेन वी टॉक अबाउट मैजिक एंड मिरेकल्स, इट्स एब्सोल्युटली हैपनिंग एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट. it is happening with the people in my life. So that is the kind of results which are possible. So magic and miracles, जो अभी अमित जी ने कहा, is not a distant dream for some people. It's not like somebody from Ambani's, if you think that is a miracle. वो भी अपने कर्मास के ऊपर ही है. आपको अपने पास के कर्मास को जैसे जैसे आप हील करते हुए जाओगे, वैसे वैसे द वर्ल्ड ऑफ इम्पॉसिबल, वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटीज विल ओपन अप फॉर यू. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ प्रोवाइडेड यू आर नॉट बाउंड बाय द कार्मिक बॉन्डेजेस. तो सिर्फ उस कार्मिक बॉन्डेजेस को हमने हील करना है. एक बार बॉन्डेजेस हट गई, योर माइंड इज फ्री एंड यू कैन गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन, एंड इम्पॉसिबल or magical, miraculous results are the, you can say, the rule of the day. Correct? So thank you, Amit ji, for sharing that. It also opened up something for me. So जैसे मैंने अपना विजन शेयर किया, तो बाकी लोगों को अगर ये लग रहा है कि मेरा कोई विजन नहीं है, तो लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू से अभी तक कोई विजन नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी इस लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो मैं अपना बेस्ट दूंगा. आई विल बी बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे फुल पैशन के साथ मैं काम करूंगा एंड मैजिकल रिजल्ट लाऊंगा. अभी नहीं मालूम क्या हुआ, पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाएगा. सो बी इन दैट क्वेस्ट, और जरूर आपको अपना विजन दिखेगा, बिकॉज व्हेन यू आर अलाइन्ड विद द डिवाइन, विजन आना ही है, डिवाइन इंट्यूशन आनी ही है. आप उस काम में लगे जाओगे, मिलते जाएंगे लोग, और सफर आपका आगे बढ़ जाएगा. बट टू हैव द विजन एंड टू फर्स्ट हैव दैट विजन, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज औरों के लिए नहीं है, सबसे पहली चीज मेरी जर्नी कहाँ जाएगी. तो अगर आपका सबसे बड़ा अगर विजन है, तो विजन का मतलब क्या है वैसे मालूम है आपको? कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, दैट इज विजन. ओके, तो कहाँ पहुंचना है? अगर आप मेरे से एक सवाल पूछते हैं तो मेरे को एक ही चीज फाइनल डेस्टिनेशन बेसिकली, कि कहाँ आपने, व्हाट इज द डेस्टिनेशन इन दिस लाइफ, और मे बी योर सोल्स जर्नी, दैट इज विजन. इस लाइफ के लिए भी ले सकते हो आप, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के विजन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के विजन होते हैं, वो इस लाइफ के लिए ऑब्वियसली हैं. सो टेक ए विजन व्हिच इज वर्थ योर लाइफ, नॉट ओनली वन बर्थ, मे बी मेनी लाइफ टाइम्स. एज अ विजन पकड़ो तो क्या होगा आपका? मेरे को क्राउन चक्र की कॉन्शियसनेस में जाना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है. सो दैट इज योर इंडिविजुअल विजन. जब तक आप वहां जाओगे, यू विल सी दैट द होल वर्ल्ड अराउंड यू हैज जॉइंड यू और विथ यू, एंड देन यू कैन क्रिएट दैट विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग the humanity, contributing to humanity, pehla level hai, then transforming the humanity to the level wherever your expertise is. So in my case it would be healing, in your case it could be like old age or whatever you have in mind. So that way बच्चों के लिए
बुजुर्गों के लिए अगर आप कोई ओल्ड एज या चिल्ड्रन होम बनाना चाह रहे हो तो वो आपका विजन होगा, वहां पहुंचोगे आप, एंड इट कुड बी समथिंग व्हिच कैन गो ऑन at the national level or at the international level, correct? And transformation of humanity we are talking of. So some area where you have an expertise, जहाँ पे आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, where you will be the best, pick up that area and that will come. But you have to first align yourself with the divine so that you have the vision. तो अपने लिए विजन क्या है? क्राउन चक्र कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, सेल्फ रियलाइज्ड होना ही है, और वहां पे बैठना नहीं अपने लिए, तपस्या करके जंगल में नहीं बैठना है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। वो क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा, पहले वहां तक जाओ, चलो तो सही वहां तक, उसके बाद वापस आके काम करेंगे ना, करेक्ट? तो ऑनवर्ड जर्नी में आपको सिर्फ वहां तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे अभी हो आप, वहां पे वो चीजें देख भी लोगे तो सपना लगेगा। बट जहाँ आप क्राउन चक्र के कॉन्शियसनेस में अगर आप पहुंच गए, अगर आप रूट चक्र में बैठे हो और बोलो मैं मतलब ह्यूमैनिटी को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, कलयुग से सतयुग में जाऊंगा, वो आपको सपने का भी बड़ा सपना लगेगा, सपने में भी आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हो ऐसा लगेगा। सो दैट इज नॉट द प्लेस फॉर यू टू एक्चुअली मेक सम प्लान्स, तब आप वो ये एग्जीक्यूशन के लेवल पे नहीं जा पाओगे। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल है, अपनी जर्नी को पहले आप चॉकआउट करिए। रूट चक्र से कॉन्शियसनेस से हमको निकलना है, कहाँ जाना है? क्राउन चक्र तक जाना है, दैट इज द विजन, ओके? और उसके लिए हर प्रोग्राम में अपने बताता हूँ बहुत सारे मार्ग हैं हमारे। तो योग मार्ग है, तो भोग मार्ग को छोड़ना होगा, जो भोग योनि में हम, तो स्लीपिंग वाले मोड में निकलना पड़ेगा, एवेकन वाली लाइफ में आना पड़ेगा, और आपको भोग मार्ग से निकल के योग मार्ग में आना होगा। योग मार्ग का मतलब या तो आप अष्टांग योग के मार्ग पे चलिए, हाँ, 8 उसके स्टेप्स हैं, अष्टांग योग हैं, उनको फॉलो करिए एंड मूव ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एंड सेकेंड इज टू गेट एन इनिशियल थ्रस्ट, अगर आपके पास कर्मा से आपको रोक रहे हैं, देन यू कैन टेक द हीलिंग पार्ट। हीलिंग पार्ट इज ऑल्सो ए अवेकन स्टेट, यहाँ पे आप अपने चक्रास के ब्लॉक्स को हील करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो व्हेन यू गो टू ए हीलर, और इफ यू आर कमिंग टू मी इन माय केस, व्हाट आई विल डू इज बेसिकली व्हेन अ पर्सन कम्स टू मी, आई डू द ऑरा फीडबैक, आई टेल देम कि कौन से आपके चक्रास में ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स को मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग से सेशन से क्लियर करता हूँ। सो व्हाट हैपेंस, योर स्पिरिचुअल जर्नी गेट्स ए जंप स्टार्ट। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस पे फिर अवेकन हो जाते हैं, आप स्लीपिंग मोड से बाहर निकल आते हैं और आप अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। एंड देन वी मीट इन फोरम्स लाइक दिस वेयर योर जर्नी पिक्स अप स्पीड, एंड देन योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेजिंग द कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे आप आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगी, एंड इफ यू रीच दैट क्राउन चक्र, मे बी इन दिस लाइफ, मे बी इन एनी लाइफ, करेक्ट? एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि आप अपने चित्त को, जो अमित जी ने कहा कि चित्त को प्यूरिफाई करते हुए जाना है, दैट इज द सेम प्रोसेस, करेक्ट? तो आप हीलिंग करते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। लोअर चक्रास, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं सबके बेनिफिट के लिए। लोअर चक्रास कहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस अटकती है, कौन बताएंगे? लोअर 3 चक्रास। एंड वेलकम कोयल जी, गुड इवनिंग। स्मृति जी, गुड इवनिंग। यस, तो लोअर चक्रास हमारे कौन कौन से हैं? सर रूट चक्र, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस। मेरे सबको ये, मैं थोड़ा सा रिकैप इसलिए करूँ क्योंकि अगर कोई बहुत दिनों बाद आए हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि हम कौन सी दुनिया में। हाँ, तो लोअर चक्र हमारे शुरू होते हैं। रूट चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, हारा चक्र भी बोलते हैं उसे, एंड थर्ड इज सोलर चक्र। ये 3 चक्र हैं जो, इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं ये। एंड ये 3 चक्र जो हैं ये सांसारिक हैं, ये आपको संसार के बंधनों में उलझाए रखते हैं। And this is what is the worldly affair. So all the 95% or so major population is stuck in these chakras, suffering and misery. 100%, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे तमोगुण आप सब लोग वाकिफ हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ईगो। तो ये ईगो के पूरे सेंटर में है, ईगो का सेंटर है यहाँ पे, सोलर प्लेक्सस जो है ईगो का सेंटर है। तो रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर चक्र इज कंप्लीटली फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, और इसी में हमारा संसार बसा हुआ है। और यहाँ अगर आप अटके हुए हो तो आप, यू कैन थिंक ऑफ ऑल द 10 हेड्स ऑफ रावण, सारे तमोगुण, रावण के 10 सर आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं। एक सर कटेगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा हटाएगा तीसरा आ जाएगा, आपको यहाँ पे फुल बिजी रखेंगे वो, एंड यू विल बी स्ट्रगलिंग, सफरिंग एंड मिजरीज इन लाइफ। क्लियर है ये सबको, राइट? तो सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे हमको कोई विजन नहीं बनाना है, यहाँ से बाहर निकलना है सबसे पहले चीज। और यही हमने अभी तक सीखा है, कैसे हम इनको
हील करते हुए, अपने कर्मों को हील करते हुए और अपने मेडिटेशन को, योगा को, सबको फॉलो करते हुए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेके हमने यहाँ से ऊपर उठना है। और हमको पहला हमको जो फ्रेश ब्रेथ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्रा में। तो हार्ट चक्रा इज व्हाट? सीट ऑफ अनकंडीशनल लव, एंड यू रीच देयर विद द steps of forgiveness and gratitude. Forgive yourself and forgive all the people in your life. Guru mantra. Gratitude. Express gratitude to yourself, the divine, everybody in your life, all the living beings, चाहे वो insect हो या फिर divine हो, the entire range, सबको gratitude, दोस्तों को, दुश्मनों को, सबको gratitude. Either somebody is there to support you or somebody is there to teach you some karmic lesson. So gratitude and forgiveness will bring you to the heart chakra. We have done this also. ये भी हम recap में कर चुके हैं, right? And in case you are having a lot of problems in forgiving people, then we can take on this discussion. So let me ask, how many of you have people in your life whom you cannot forgive? और आप उनके लिए बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा. ऐसा कोई है? होना चाहिए. मेरी लाइफ में था, लेकिन मैंने अब कॉन्शियस लेवल पे फॉरगिव, सबकॉन्शियस लेवल पे भी फॉरगिव कर दिया है. अब वो ये एज आई डिस्कस्ड कि पहले वो मेरे माइंड में छाए रहते थे, अब कुछ नहीं होता. तो आई हैव लर्नड दैट कि मुझे फॉरगिवनेस के बिना तो मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी ही नहीं. तो अफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस दैट आई, तो वो सब रेगुलर मेरा बहुत टाइम से चल रहा है. एंड थैंक यू एंड संजीव फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो इन दिस जर्नी. Perfect. So wonderful, wonderful, Preeti ji and Smriti ji. I've seen your comment, and Baljinder ji also. So forgiveness, forgiveness. We all know there were some people in our life, right? Yeah, पहले थे, अभी नहीं हैं. So yes, I understand that, right? So this is the perfect way, and this is where you get. कैसे रहोगे अब आप? जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे आपका जीने का स्टाइल हो जाएगा कि संसार में है लेकिन संसार से थोड़ा सा हटके, right? And that will give, this is a place which will give you freedom from the tamogun. Now you are there at the heart chakra. Heart chakra is also for what? Unconditional love तो है ही है, लेकिन इसमें एक और जो major है seat. This is a seat for rajogun. Yes. Rajogun is what? Raj is what? Rajas is what? It is emotions. Emotions. मजा रजस का इमोशंस में है ना. तो इमोशनल सेंटर है ये. तो पहले ईगो सेंटर था नीचे, सोलर प्लेक्सस, और द नेवल सेंटर इज एक्चुअली द वी से द ईगो सेंटर, और उसको हम सोलर प्लेक्सस में लेते हैं. सोलर चक्र में आता है वो, राइट? तो टिल सोलर चक्र इट्स ऑल नेगेटिव तमोगुण एंड इट इज द सीट ऑफ ईगो. हार्ट चक्र में आते ही आ गया इमोशन, और ये है मंथन, बैलेंसिंग चक्र है. नीचे के 3 लोअर हैं, ऊपर के 3 हायर डिवाइन चक्रस हैं. हार्ट इज द सेंट्रल चक्र, बैलेंसिंग चक्र ऊपर नीचे होता रहता है. हार्ट बीट के जैसे ऊपर नीचे जाएगा. कोई ना कोई सिचुएशन आए, आप हाई हो जाओगे, खुश हो जाओगे, बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, पैशन आ जाएगा, एंड देन you will start doing the work, and sometimes it will go down, so you will get depressed, angry, upset, and then you will fall down. तो यहाँ पे आपको सीट, ये आपका घर है, this is a seat. यहाँ पे first taste of divinity भी आएगा आपको, right? And if you know people who are in bhakti yoga, if you take some teachings from ISKCON, Hare Rama Hare Krishna, completely into this heart chakra के consciousness में है वो ISKCON, complete भक्ति हो. भजन सुनो, और भजन में जो आंसू बहेंगे, आपके भजन गा रहे हो, भजन सुन रहे हो और आंसू बह रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा में वैराग्य के कनेक्शन जुड़ते हैं. सॉरी, इज माय इंटरनेट ओके कनेक्शन? आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट जरा अनस्टेबल दिखा रहा है. इसमें वॉइस क्लियर? यस. ओके, गुड, थैंक यू. शशि, इट्स ब्रेकिंग एट टाइम्स. हाँ, थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है अभी. तो इन केस I am not clear, tell me, I will repeat that again, okay? But meanwhile, if it is okay, I will continue. Okay hai? Yes. Okay hai? Yeah. Perfect. Yeah. So we were talking of the heart chakra. तो जब आप भजन सुनते हो, आंख से आंसू बहते हैं. क्यों बहते हैं? ऐसे बहते हुए इमोशनली वीक हो गए क्या आप? नहीं. क्या हो गए? सरेंडर. थोड़ा सा वैराग्य या थोड़ा सा नॉन अटैचमेंट वाला जो कनेक्शन आपका बन गया है हार्ट चक्रा में, एंड यू आर एक्सेसिंग दैट अनकंडीशनल लव. जब भक्त भगवान को बुला रहा है, दैट इज अनकंडीशनल लव, करेक्ट? एंड एनीवेयर वी हैव टू कनेक्ट. कहीं ना कहीं हम सब सुदामा हैं. सुदामा कौन है? वो नहीं है कि जो फटे हाल है, भूखा है, जरूरी नहीं है वही हो सुदामा. एनीबडी हु इज इन अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस,
Anybody, it could be a state of like say Draupadi calling for Krishna, helplessness, right? तो जब भी सुदामा बन के आप भगवान को बुलाएंगे तो भगवान ने कुछ ना कुछ अपनी डिविनिटी सरेंडर कर दिया एक बार भगवान को, तो भगवान ने फिर करना ही है। भगवान भक्त के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? तो भजन के एक लाइन है, हर हाल में भक्त का सम्मान हो रहा है। भक्त जैसे ही भगवान को बुलाता है भगवान सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे टू सेव यू। That is symbolic, but what you need to understand is the moment you surrender and your heart chakra opens up, you are accessing that unconditional love. Correct? And when you access that unconditional love, you will experience and express that unconditional love with whom? With all the people in your life, right? And that is giving you an access to create magic and miracles in your life. तो भक्ति योग को भाव को पकड़ो, उसके कंटेंट को मत पकड़ो, बेसिकली उसको लॉजिक को मत पकड़ो, क्योंकि जहाँ भक्ति आ जाती है वहाँ डिवोशन है, डिवोशन में आपको भाव पकड़ना है। बट इफ यू सी दैट लॉजिकली, ज्ञान योग के अगर हिसाब से देखोगे तो क्या हो रहा है? अनकंडीशनल लव you are accessing from the heart chakra, experiencing and expressing that, so you are sharing that with all the people in your life, and suddenly magic and miracles will open. That is the first taste of divinity. And फिर आपको लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है भगवान कर रहा है। करेक्ट? तो भक्त क्या बोलते हैं हमेशा? भक्त हमेशा ये बोलते हैं, कर रहे हो आप, नाम मेरा हो रहा है, राइट? बेसिकली व्हाट डज इट मीन? You are so much into the flow with the divine कि आपको लग ही नहीं रहा कि आप कोई कर्म कर रहे हो. It's just a flow. You are a channel through whom the energy is coming and energy is acting on you, and your body is doing some actions. तो आप कुछ नहीं कर रहे, जो कर रही है वो एनर्जी कर रही है, and that is true. जब आप एक as a healer, if I connect, it's absolutely perfect. All I have to do is connect with the divine. आपको क्या लगा हीलिंग एनर्जी में शशिधर कर रहा है, ये बॉडी कर रही है? नो वे. वो हीलिंग एनर्जी ही कर रही है. The divine energy comes, flows into me through my hands. I touch, that divine energy is there. That is what is touch healing. Distance healing, I connect with the mind. Thought से connect करता हूँ, जिनको मैंने healing भेजनी है उनको मैं healing energy direct करता हूँ meditative state में, and that healing energy goes and clears their blocks. And touch wood, because of that divine connection only I can see the blocks. मेरे को पता लग जाता है कि किसके कहाँ पे blocks हैं और किसको कितनी हीलिंग भेजनी है और कितनी जल्दी वो क्लियर होगा, एंड मैजिकल रिजल्ट्स आर हैपनिंग. तो ये मैजिक कौन कर रहा है? शशिधर. चांस ही नहीं है. माय बॉडी चांस ही नहीं है, ये तो जड़ है. तो कौन कर रहा है हीलिंग? Divine energy. Divine energy. So what you need to understand, I keep saying this is actually my punchline I used to say to people. See, deep within you is a healer. At the soul level you are all healers. You are not aware of it. आप अनकॉन्शियस हो, मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, इतना ही फर्क है. एनर्जी वही है जो हील कर रही है, मेरे में कोई स्पेशल एनर्जी नहीं आ रही है. एनर्जी आप में भी वही आ रही है. As long as you are alive and I am alive, we both are having accessing the same energy. But I have full faith in that energy. You have doubt in that energy. करेक्ट? जो हीलर नहीं होते हैं, मतलब See, अगर आपके शरीर में एक कट हो जाता है, वो हील हो रहा है, दैट मीन्स वो हीलिंग एनर्जी कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो ना. You are the one who is healing. किसी भी मेडिसिन में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी बॉडी को हील कर सके. किसी भी बैंडेज में या प्लास्टर में इतना दम नहीं है कि आपके बोन को जोड़ सके. All this healing activity is being done by you only. So you are that energy. Okay, and that just brings to my notice कि all of you know that we are starting a basic healers program very soon. So the date has been, the intuition which has come to me is that I'm starting that on 14th of Feb. 7th So Feb, I guess. 7th नहीं, 14th को आया है. So we will be starting from 14th. 7th को एक orientation program करेंगे. So that I am aligning everybody. So you would have a lot of questions कि a lot of expectation setting वगैरह जो होगा वो हम 7th को करेंगे. 14th से program roll out होगा and it will be 11 sessions and completely उसमें मेरा अभी कुछ एजेंडा नहीं है. जैसे डिवाइन का इंट्यूशन आएगा वैसे वो प्रोग्राम जाएगा. बट ऑल आई नो इज दैट डिवाइन हैज टोल्ड मी टू डू इट, सो आई विल डू इट. ओके, तो वो डिवाइन के ऊपर ही छोड़ा हुआ है मैंने कि कैसे जाएगा, क्या जाएगा. सो ऑल आई वांट टू टेल यू इज दैट उसका पंचलाइन जो मेरे को आज कल सुबह आया है ये मेरे दिमाग में कि एवरी सोल इज अ हीलर. यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. माय जॉब इज ओनली टू मेक यू अवेयर ऑफ दैट यू आर अ ग्रेट हीलर. ओके, टू गेट योर स्पिरिचुअल कनेक्शन फास्ट एंड get that divinity in and exercise that. Few techniques of course will be there क्योंकि हर चीज में कोई टेक्निक होती है. तो जितने बड़े आप
खिलाड़ी हो, थोड़े बहुत स्किल्स सीखने पड़ेंगे, बाकी वो एनर्जी काम करेगी। तो जो थोड़े बहुत स्किल्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें, एंड उसके बाद you are there to heal yourself and to heal all the people in your life. So how many of you see yourself as a healer first? Let me see that. And how many of you know that you are already a healer? Great. Wonderful. Fantastic. So who are not raising hands, if you have any doubts, this is the time to ask question, okay? मैं अभी भी वही bold statement बोल रहा हूँ. At the soul level, deep within you, you are a healer. But you are just waiting to come out. Express yourself. Expression missing है. क्यों? क्योंकि वो faith missing है, क्योंकि वो connection missing है, और कुछ नहीं है. Connection आ जाएगा, faith आ जाएगा, faith आ जाएगा, expression शुरू हो जाएगा. Then you will be healing yourself and you will be healing everybody in your life. And that is the only way that transition of Kali Yuga to Satyug can happen. Yeah? And मैंने आज या कल ही मैंने पोस्ट में डाला था, कितने लोगों को याद है व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला था अभी लास्ट. हीलिंग क्या है? Healing is the end of all the conflicts in your life. Yes, yeah. आपकी लाइफ में जितने भी conflicts चल रहे हैं, thank you Tony. So you have been very attentive with the post. I understand that one. Yeah, so good job. Yeah. Thank you. आपकी लाइफ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप हील नहीं हुए. तो जैसी हीलिंग का मतलब क्या है? इट विल एंड ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर लाइफ, व्हिच मींस व्हाट? योर बॉडी, 5 एलिमेंट्स ऑफ योर बॉडी, मालूम है ना सबको, और मैं ये नहीं दोहराऊंगा. ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ योर बॉडी एंड ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ योर माइंड आर अलाइन्ड विथ व्हाट? किसके साथ अलाइनमेंट है? डिवाइन के साथ अलाइनमेंट है. विद द डिवाइन. यस, एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज इट. तो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए. कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए तो आपका हीलर बाहर आ जाएगा. तो मेरे इस 11 प्रोग्राम्स में आपको सिर्फ यही मिलने वाला है, टेक्निक्स ऑफ कोर्स, but I will get you absolutely perfectly connected with the divine, and this is called the attunement or the connection. तो spiritual connection आपका जो divine के साथ है वो इतना perfect हो जाएगा, you will access all the divine energies and then you will learn some techniques, and that is where you will be expressing yourself as a healer. Healing yourself means that all the aspects of your life, physical, mental, emotional and karmic. ये 4 लेवल से जहाँ पे आपको हील करना है, करेक्ट? बॉडी को हील करना है, माइंड को हील करना है. सोल लेवल पे तो सिर्फ कनेक्शन जोड़ना है. जैसे मैंने कहा, कनेक्शन के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है. इफ आई वांट टू कनेक्ट टू प्रीति जी, और इफ आई वांट टू कनेक्ट टू कवन, आई हैव टू सी वेदर दे आर फ्री और नॉट. बट इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द डिवाइन, यू कैन पिक अप द कनेक्शन एंड डायल एनी टाइम. डिवाइन के सारे कनेक्शंस ओपन हैं, फ्री हैं, करेक्ट? कभी भी लाइन बिजी नहीं आएगा. तो भगवान से बात करना आसान है या लोगों से बात करना आसान है? भगवान जी से. हम क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है. नहीं, वो संजीव कहते हैं ना, कि कोई कहते हैं कि क्या टाइम परफेक्ट है, संजीव कहता है जब सांस ले रहे हो तब परफेक्ट है. Absolutely. It is as simple as that. Every breath, if you are breathing, this is the moment to get connected with the divine, right? Yes. So that tells you a little bit about, yeah. रेस का मतलब भी यही है कि आप कनेक्टेड है. बिल्कुल आप कनेक्टेड हो. That's what I'm saying. As long as you are alive, you have to understand. सांस चल रही है, ये सिंबल ऐसा इस बात का कि आप भगवान से कनेक्ट हो. बिल्कुल हो. Correct. And if you understand some of the basics of, अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन when you come to the deep study of maybe अद्वैता के अगर आप बेसिक्स पढ़ेंगे, हाँ, तो वेदांता में जो अद्वैत का जो लर्निंग से अगर आप वो सीखोगे, आपको ओहो, इट्स लाइक द नॉलेज ऑफ अद्वैता इज लाइक ओहो ये था, यू नो, इट्स लाइक दैट. aha experience comes from there, and that's where I actually got connected. ये तो मैं 25 साल से रेकी सीख रहा हूँ, 25 साल से spiritual healing कर रहा हूँ, but the actual connection I got was when I read the Vedanta knowledge got into me, and जहाँ पे जो connection बना, and that came immediately after I completed the 4 levels of the program, Amit ji, and it was like oh, no, that was a kind of connection, and it just happened like that. One day in the meditation, everything became clear to me. क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, you know, मैंने कहा complete surrender. अब मेरे को कुछ नहीं सोचना, अब मेरे को सिर्फ, you know, just move on, and that's how it started happening, right? So anyway, good. So that's exactly what I said. जब तक आप breathe कर रहे हो, you are connected.
just be aware of it. The more you are aware of it, the more powers, more connection अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा powers आ जाएंगी. ज़्यादा मतलब you will actually get the powers, and then you can create magic and miracles. That's how it is, right? Okay, तो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ. You must be having some questions. So who has not shared anything till now? And meanwhile, welcome Vaishali ji. You have any questions? Anybody who has a question can ask. Anybody who wants more clarity can ask. And Thank you, sir. Good evening. yeah, who is that? Who wants to share? Okay, mute. अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए. Yeah, anybody who wants to ask any question? किसी को कोई सवाल? Need to brush up my knowledge about Vedanta. I studied that in class 11, 12th and college. Okay. I was doing philosophy honors, so that was a branch of Indian philosophy, Advaita Vedanta. So if you want the pearls of wisdom, if you want the pearls of wisdom from Vedanta and the Advaita knowledge, so that because of the divine guidance, you will be getting. I'm in the middle of it, yeah. Hello, what happened? Is that okay? Yeah. So if you want the pearls of wisdom from any context, you mean, so it will be there available for you, because it will be all guided by the divine. One branch was this and one branch was Bhagavad Gita, the Karma Yoga. Wonderful. So yes, so all the brushed up. I get that. So Preeti is already aware of many parts of yoga, like Karma Yoga bola apne, Bhagavad Gita bola apne, and Vedanta bola apne. So these are the जिस मतलब इसमें पूरे सारांश है, इसमें पूरा का पूरा वो विजडम है जो आपको आराम से आपकी जर्नी में ले जा सकता है. ओनली थिंग इज यू नीड मोर क्लैरिटी. वो क्लैरिटी आपको थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं, आपको एक्सपीरियंशियल लेवल पे जब आ जाएगा तो तब वही एक्सप्रेशन आएगा जो मैं अभी बता रहा था. ओहो ये था, that's how it is. So it is so easy once you get connected. So that's what we will be exploring in that program. So my invitation to all of you is to consider and be a part of that program. And I'm sure जो लोग spiritual journey में आगे बढ़ रहे हैं, and of course if you are here, you are moving forward. So this is a very good journey for you, and together we are going to create magical results. So that's what I can assure you right now, right? So any questions, anything that you want to ask? Because I think आज कोई major agenda नहीं था, हम recap ही कर रहे थे जो कुछ अभी अब तक हमने सीखा है, right? तो कर्म योग की बात आई है, तो अगर कर्मास के ऊपर भी अगर पिछली बार हमने काफी डिस्कस किया था, हेवन एंड हेल की बात करी थी हमने, तो उस पर अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? मैं नहीं था लास्ट मीटिंग में, बट हेवन और हेल पे अगर 2 मिनट के लिए आप रिकैप देना चाहें, दे सके तो. ओके. सो हु वांट्स टू शेयर, क्या सीखा आपने पिछली बार का हमारा जो डिस्कशन था? ओके, क्या था, एक बार कौन बोलना चाहेंगे? प्रीति जी आप बोलेंगे, कुछ समराइज करेंगे? Because I need a 30 seconds break. So with your permission, I need a 30 seconds break. So meanwhile, Preeti ji, you can just share and then I will take it on from there. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. It was like Amit Bhaiya, it was like कि जो situations हमारी life में आती हैं, it is from our past karmic account and the way we deal it. अगर जैसे समझ लो कि कोई आया, कोई हमें मार रहा है, हमारे को कोई पुराना कोई कार्मिक अकाउंट है किसी भी जीव के साथ, किसी भी इंसान के साथ, वो हमारा नेबर बनकर ही आया, लेकिन हम क्योंकि हमारा बुरा कार्मिक अकाउंट है तो वो उसी नोट पर स्टार्ट होगा, उसी नोट से हम स्टार्ट करेंगे उस इंसान के साथ. बट हमारा जो रिजल्ट होगा कि हम उसको बेटर करना चाहते हैं या ये, वो फ्री विल पर डिपेंड करेगा हमारी. अगर हम वापस से, उसने आपको गमला क्यों रख दिया, किसी भी छोटी बात पे अगर वो हमसे बहस करता है, अगर हम भी वापस बहस में पड़ेंगे तो वो हमारी चीजें और बिगड़ती जाएंगी, क्योंकि वही इफेक्ट हमारी सोच पर भी आता रहेगा. अभी एक से बहस हुई है, घर में आएंगे तो हम अपने बच्चों से भी बहस करेंगे, अपने स्पाउस से भी बहस करेंगे, अपने पेरेंट्स से भी बहस करेंगे. वही सेम चीजें हमारी वर्क प्लेस पे भी जाएंगी, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट अ डे विद एन आर्ग्यूमेंट और समथिंग दैट इज देयर इन योर माइंड, अगर यही हम उसको सॉरी बोलकर एक स्टार्ट करेंगे, मे बी फर्स्ट डे नहीं सॉल्व हो, धीरे धीरे कर ही हम उस हेल्प कन्वर्ट कर सकते हैं. With our peace, with the calmness, we can convert that hell into heaven. Okay. नहीं, मेरा मतलब ये था सवाल से कि
क्या हेवन और हेल एग्जिस्ट करते हैं, क्या वाकई में It क्या is what we make our life. ओके There's nothing like hell and heaven. ठीक It is what we make our lives into. हाँ, तो हम जो हेवन और हेल है वो यही एक्सपीरियंस करते हैं, इसी जन्म में एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या वाकई में मरने के बाद या पहले हेवन हेल नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, या सिर्फ फिलोसफिकल या सिर्फ हाइपोथेटिकल चीजें? What जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी भी, it is only hypothetical. It Even is I what we make our lives into. मैंने यहाँ पे ना Because as Bhagavad Gita also says कि it depends on your karmas, you आप वही कर्म करते हो, वही आगे आकर भोगते हो। और हमारी फ्री विल से आगे के कर्मास, आगे की लाइफ हमारी डिसाइड होती है। करेक्ट। पास्ट कर्मास प्लस प्रेजेंट कर्मास विल कन्वर्ट इनटू डेस्टिनी। यहाँ पे ना मैं एक थोड़ा सा एक तरीके से मैं लोगों को समझाता हूँ अबाउट कर्मा। सो लॉ ऑफ कर्मा सभी को जानते हैं। मैं कहता हूँ कि और थोड़ा सा मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो बेटर होगी, फैमिली से मैं शेयर नहीं करता हूँ। जितने भी लोग हमें एक एगनी या पेन देते हैं, बल्कि हमें एक बार उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके उस वजह से हम थोड़ा सा और अपना बैंक का रिकंसिलिएशन कर पाए, लोन को वापस चुका पाए। जितना जल्दी चुकाएंगे उतना जल्दी आगे जाएंगे भैया। जब ये बात समझ में आ जाती है ढंग से, तो हर एक दुख देने वाले को थैंक यू निकलता है। बड़ी अजीब सी मैजिकल सी बात है, अनबिलीवेबल बात है, पर कभी कभी जब फीलिंग आती है ना, हाँ लव यू टू, जब वो परेशान कर रहा है लव यू टू ब्रदर, ऐसे वाली फीलिंग का जो रस है, जो हार्मोन है हैप्पी का, वो गजब है। इसीलिए अब ना I'll talk to the little bitter and rude point, which is likewise, जैसे ये लोग मीडिया में व्हीकल हैं जो हमको दुख या एग्नी दे रहे हैं, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई इवेंट घटना हो, इसी तरह से जो हमारे फैमिली के लोग हैं, बीवी बच्चे भाई बहन, वो भी सिर्फ माध्यम है जॉय का या हैप्पीनेस का, उनसे अटैचमेंट नहीं करना है। I cannot say this to family, for example, as confidently and as repeated times as I say, पर इसी तरीके से जब ये नहीं होगा, जब जिनसे जॉय मिल रहा है, लव मिल रहा है, उनसे अटैचमेंट नहीं होगा, तो वो जो दुख जो आज की तारीख में 90% लोग झेलते हैं, वो यूजुअली लव्ड वंस की वजह से झेलते हैं। कमिंग बैक टू आपने जो एक जो जैसे कोई भी एग्जांपल दिया कि हम करेक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक ना छोटा सा एक थ्योरी है यिन यांग की, सभी को पता होगा, जो मैं तो कम से कम मैंने पोस्टर लगा रखे थे, पासवर्ड चेंज कर रखे थे, मुझे एक हफ्ता लगा यिन यांग को लाइफ में उतारने में। और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है जो आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके रिलेटेड पासवर्ड्स, डीप डिस्प्ले पिक्चर्स सोशल मीडिया पे या आसपास कहीं लगा लीजिए। एक हफ्ते में आपकी लाइफ में अगर 10-20% उस चीज को लेकर के चेंज ना आ जाए, मतलब I'll be surprised if it doesn't work. So yin and yang ये कहता है कि this universe is driven by two opposite forces which work against each other, but they need each other to coexist. दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जैसे लाइट, प्रकाश का उल्टा है शैडो, छाया, लेकिन शैडो नहीं एग्जिस्ट कर सकती विदाउट लाइट। इसका मतलब क्या है? एवरी कॉन्ट्रास्टिंग थॉट, हर एक विपरीत थॉट जरूरी है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। अगर कोई सड़क पे गाड़ी गलत चला रहा है, अरे भाई जरूरत है ऐसे लोगों की। किसी का टेस्ट कुछ और है, अरे भाई जरूरत है ऐसे लोगों की। 100 नंबर वाले की वैल्यू तभी है जब 80-90 भी आते हैं किसी के, वरना वैल्यू नहीं 100 वाले की। ये चीज सबको पता है, कोई नई बात नहीं बताई मैंने, लेकिन दिन में कम से कम 100 बार इसको इस्तेमाल करने के मौके और अवसर मिलते हैं, पर हम भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, हम गुस्सा हो जाते हैं। अरे हाउ कैन यू डू दिस, अरे तू ऐसा कैसे सोचता, अरे नहीं भाई ऐसे लोगों की जरूरत है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं। तो ये यिन यांग की थ्योरी को अगर आप एक हफ्ते पे, मतलब मैं तो ये करता हूँ, मैंने जो भी मेरे में डेवलपमेंट किए, मैंने कॉन्शियसली एक एक थॉट पे फोकस किया और अपने आप को ना बम्बार्डमेंट करा ली उन थॉट्स की। जैसे मैंने कहा, खूब सारे प्लेकार्ड्स, डिस्प्ले पिक्चर्स व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पासवर्ड्स चेंज कर लिए। अब मैं जबरदस्ती वो पासवर्ड टाइप करता हूँ, सामने लिखा हुआ है यिन यांग, में क्या करूँ? मतलब इनिशियली फर्स्ट 2 डेज तो लगेगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, लेकिन जब 5 और 6 दिन हल्का सा होता है, अरे यार ये यिन यांग सोच लेता हूँ इसमें, इसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसे लोग जरूरी हैं, फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते में आप सॉर्टेड हो। तो ये यिन यांग का थॉट, क्योंकि प्रीति बहन बता रही थी कि वो गमले का एग्जाम्पल लिया, किसी को ऐसे एंगल से पसंद है, किसी को इस कलर का पसंद है, हमको कहना भाई वैसे ही भैया देखो, अगर आप सिर्फ सब लोगों को सिर्फ मीठा पसंद होगा तो स्पाइस की वैल्यू नहीं रहेगी ना। स्पाइस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। Some people will love salty, some will love spicy, and some will love sweet. So everybody similar चीजें होती रहेंगी तो लाइफ ही बहुत बोरिंग हो जाएगी। It has to be spice in life. Right. सबसे पहला फायदा इसको लगता है जो सड़क पे लोग गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि सबसे मतलब हमें बच्चों से भी इतनी एक बार को नहीं लगता हर रोज, लेकिन जो सड़क पे निकला, एक ना एक घटना छोटी सी आधे सेकंड की होती है, जो हार्ट थोड़ा सा पाउंस होता है, लगता है ये कैसे चला रहा है।
तो ये नहीं का एक डैंगलर टांग लो गाड़ी में, वो जो एक राउंड है वो दिखाई देगा, सॉर्टेड। मतलब मेरे से तो काम किया, और उसके बाद एक्सेप्टेंस बढ़ती है, फिर लेट गो बढ़ता है, वो सब चीजें ना इससे निकलती रहती हैं। Absolutely. और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब बिल्कुल ये लॉ ऑफ कर्मा समझ में आ जाए, साथ में यूनियन को जोड़ दो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, या बाकी तो Perfect. नेवर एंडिंग है। Perfect, Amit ji. Thank you so much for sharing that. Thank you, Preeti ji, for sharing that. And I hope the discussion was live and clear for everybody, right? तो बेसिक हमारा आइडिया यही था, जो अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं उसे, तो ये था कि पास्ट जो आपके कर्मास हैं फ्रॉम पास्ट लाइफ, दे गिव यू द सिचुएशन, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो सिचुएशन, परिस्थिति जो होगी वो जो मर्जी हो, आपकी मनोस्थिति कैसी होगी ये आपके हाथ में है, राइट? So that is a basic distinction that you have to do, and that you can do when you are non-attached. उस सिचुएशन से जब अटैच नहीं होंगे, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बॉस हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बच्चा हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, जो मर्जी हो, राइट? You have to be a little attached, non-attached. Non-attached होते ही अब आप उस सिचुएशन को देख पाएंगे, जिसको बोलते हैं दृष्टा भाव आ जाएगा या साक्षी भाव आ जाएगा थोड़ा सा। Now you can see that and now you can choose your emotion accordingly. तो अब जो आप कर्म कर रहे हो, प्रेजेंट कर्मा जो है, यहाँ पे आपको फ्रीडम है। That freedom you have to exercise, and that is where the combination comes. So your past karma plus present karma will give you the destiny or the desired result. That was the gist of what we were discussing, correct? Now अगर आप नेगेटिव होते हैं, तो अगर आपको नेगेटिव इमोशन आपने चूज किया है या नेगेटिव रिस्पॉन्स, रिएक्टिव रिस्पॉन्स आता है, तो क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या होती है? यही हमने देखा था कैसे हेल क्रिएट होता है, करेक्ट? सबसे पहले आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है, करेक्ट? माइंड नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू कैन से इट विल, अगर उसी लूप में चलते रहे, बड़ी जल्दी लूप में जाते हैं हम। नेगेटिव अगर शुरू हो गया तो नेगेटिव लूप में ही जाएंगे, पहले इरिटेशन होगी, फिर एंगर आएगा, फिर अपसेट आएगा, फिर वायलेंस आ जाएगा, रेज आ जाएगा, फिर खून खराबा होगा, राइट? सो इट विल ऑल बिकम बेसिकली व्हाट, एंड देन अगर आप अपसेट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो ये डेंजर वाले हैं। तो डेंजर साइन 4 हैं जहां जाते हैं। पहले आया था डिप्रेशन। तो माइंड अगर डिप्रेस्ड हो गया तो बॉडी में क्या आएगा? सबसे पहली चीज जो बॉडी में रिजल्ट करेगा, क्या आएगा बॉडी में? डिजीज। ओके, तो डिप्रेशन, पहले आपका सिर्फ माइंड अपसेट हुआ है, अब अपसेट से कहां पहुंच गया? डिप्रेशन में। डिप्रेशन से क्या है? बॉडी में डिजीज आ गया। डिजीज से क्या होगा? आप जिसने आपको गुस्सा दिलाया उस पर प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, डिसहार्मनी आ गई, डिस्कॉर्ड आ गया रिलेशनशिप, ये भी डी है। तो सारे डेंजर वाले हैं ये, ठीक है ना? तो पहला आया क्या? डिप्रेशन। दूसरा आया क्या? डिजीज। तीसरा आया क्या? डिस्कॉर्ड। चौथा क्या आया? devil. You become a devil then, and it becomes hell. So this is the creation of hell in your life. Another D. How about reaching a divine space after that? Another D. So I don't mind sharing that I was under a clinical psychiatry treatment. और मैंने हितेश जी से भी सुना, बाद में भी सुना कि S5, मतलब शायद लोग नहीं समझाएंगे, लेकिन एक डिप्रेशन वाली स्टेज आती है, एंड इट्स अ ग्रेट सिग्नल कि अगर उस समय अपनी गाड़ी को सही जगह मोड़ लिया, डिप्रेशन इज अ वेरी प्रोफाउंडली फाउंड इंटरमीडिएटरी स्टेज, बीच में आती है, बिफोर सम ग्रेट अवेकनिंग। Absolutely right. Absolutely Another right. D, divine. Absolutely right. उसी को मैं बता रहा हूँ, Absolutely डिप्रेशन right. से कैसे आप चेंज करना, सिर्फ गियर चेंज करनी है, Yeah. करेक्ट? अब जैसे ही आप उसमें नॉन अटैच हो जाते हो, सिचुएशन आपने बताई दी होगी प्रीति जी, क्या बताया था ना, गमला या जो भी है, पड़ोसी के साथ जो भी मारधाड़ हो रही है, करेक्ट? तो सिचुएशन वही है, क्योंकि पास्ट लाइफ का सिचुएशन वही है, नहीं चेंज होने वाला है, वो पास्ट से आ रहा है। देयर इज नो वे, यू हैव नो कंट्रोल ऑन द परिस्थिति, बट मनोस्थिति मेरे हाथ में है। अब मैंने मनोस्थिति में क्या बनाया? बीमार है, छोटी सी एक थॉट बना ली, हाँ, तो क्या करेंगे? जैसे हमने मूवी में भी देखा था एक, हाँ, अब क्या भेजेंगे उसको? हम फूल भेजेंगे, बीमार है ना, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। सो ऑल द पीपल इन योर लाइफ यू नीड टू बेसिकली टेक केयर, यू आर केयर टेकर समझ लो आप। तो फैमिली के साथ भी अटैचमेंट खत्म हो जाती है, इन द सेंस दैट नाउ यू केयर फॉर देम बट यू आर नॉट अटैच्ड। नॉन अटैचमेंट वाले से केयर एंड लव आ जाएगा। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं वहां से। तो अब पहले डिप्रेशन में जा रहे थे, अब क्या हो जाएगा? गियर चेंज किया, जैसे बोला डिवाइन कनेक्शन, अगर एवेकनिंग आ जाएगी, एवेकनिंग यही है, थोड़ा सा नॉन अटैच होना, एवेकनिंग शुरू हो जाएगी, करेक्ट? अब क्या आएगा यहाँ पे? हैप्पी, यूज ए हैप्पी रिस्पॉन्स। चॉइस है ना आपके पास? बिल्कुल है। तो अगर आप किसी को चॉइस दे, आप दुखी होना चाहोगे या खुश होना चाहोगे? हाँ जी, जिन्होंने अभी तो कुछ नहीं बोला, बताइए, आपको चॉइस देना, खुश रहना है कि दुखी रहना, कैसे रहोगे? खुश रहना है। वेरी गुड टोनी जी। सो हैप्पी माइंड आ गया तुम्हारा। अब ये सारे एच हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको हेवन क्रिएट करना है ना। तो हैप्पी माइंड आ गया, हैप्पी माइंड आ गया, हैप्पी माइंड आ गया, तो बॉडी में क्या आएगा? हेल्दी बॉडी रहेगी,
तो एक और एज पकड़ लो आप, हेल्दी बॉडी आ जाएगी। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप कैसी हो जाएंगी उसके साथ भी और बाकी लोगों के साथ, क्योंकि सेम एनर्जी यू आर गोइंग टू रेडिएट टू एवरीबॉडी, It will करेक्ट? be in harmony. हार्मनी, तो रिलेशनशिप हार्मनी में बन गई तो दुनिया, लाइफ कैसी हो गई आपकी, हेवन बन गई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हेल और हेवन जो है हम बना रहे हैं कैसे, अपनी चॉइसेस से, कैसे, नॉन अटैचमेंट से। तो ओनली अवेकनिंग दैट यू विल गेट इज वंस यू आर नॉन अटैच, दैट इज द बिगिनिंग। Shashibhai, whenever the awakening comes, it is either if you'll feel being victimized in some form or the other, that सारा संसार का दुख तकलीफ तुम्हें भगवान ने दी है, you'll feel victimized, and कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार वो अवेकनिंग स्टेट में आ जाते हैं वहां से वापस। Both will lead to awakening if you're slightly aware of it, थोड़ा सा aware हो जाओ उसमें। And by God grace, I think I was the most favored child. भगवान का बहुत प्यारा बच्चा था मैं, तो when I felt like I am being victimized, I was blessed with good friends who took me out from there, and I was awakened that time. कि तब से शायद हो सकता है, क्योंकि fulfilling the requirements of children and all, शायद मेरे spiritual journey से इतनी ज़्यादा high level पे नहीं रही है, but definitely I learned to stay happy. ये awakening तो सब लोगों के लिए लॉकडाउन एक कर्स रहा है, लेकिन मेरे लिए ब्लेसिंग रही है, that I have kicked up my journey in this lockdown. But yes, I think this is a blessing in disguise for me. Absolutely perfect प्रीति जी, बहुत बढ़िया। यस रेणु जी, आपको शेयर करना चाह रही हूँ? नहीं सर, प्रीति मैम ने जैसे लॉकडाउन की बात की तो मैंने कहा कि मेरा भी इस लॉकडाउन के टाइम में स्पिरिचुअल स्टार्ट हुई। उससे पहले बिजी रही और भागदौड़ लगी रही। जब शांत होके ये टाइम मिला, जब शांत होके बैठे तो फिर पता चला, अंदर भी झांका और आप लोगों से भी कनेक्शन हुआ, तो उसके बाद से चेंज होने लग गया। परफेक्ट रेणु जी, तो परफेक्ट। And I think जब टाइम आता है ना तो अपने आप वो चीजें प्लेस में बैठने लग जाती हैं। बिकॉज मेरी फ्रेंड ने मुझे 15 साल पहले से कहा था, प्रीति यू आर मेंट टू बी अ हीलर, बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ हीलर। और उसने मुझे कहा कि तेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू हैव हीलिंग एनर्जीज इन यू, व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस दैट डेली। तो वही होता है ना, अपनी उधेड़बुन में उधेड़। बट अब मुझे रियलाइज होने लगा है कि नहीं, दिस इज ओनली द थिंग व्हिच आई एम मेंट फॉर एक्चुअली। This is the place where I was destined to be. तो it was because मुझे पता है कि जैसे छोटा सा एग्जांपल ही है, अब जब भी कोई मेड हमारे यहाँ बीमार होती है या कोई नौकर बीमार होता है, इट इज वेरी, वो 15 दिन तक डॉक्टर से दवाई ले लेंगे, लेकिन घर पर आएंगे ना, नहीं ठीक हो रहा है भाभी जी, तो मैं कहूंगी अच्छा चल ठीक है, क्या हुआ है, एक काम कर, ये मेडिसिन जस्ट भगवान ने चाहा तो तू ठीक हो जाएगी, इट इज ओनली दिस आई से। और वो 2 दिन के बाद आती नहीं भाभी जी हम बिल्कुल ठीक हो गए, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ प्रैक्टिस्ड डॉक्टर, वो जस्ट एनर्जी से आई गिव दैट मेडिसिन टू देम। इट कुड बी जस्ट एक डोलामाइट होता है, पैरासिटामोल होता है, एलसीजेड होता है, बेसिक मेडिसिन आई गिव देम, और वो उसी से ठीक हो जाते हैं डिस्पाइट ऑफ टेकिंग इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग। तो कहते हैं भाभी जी हमें तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत है। That gives me satisfaction. These are signs that you need to understand the bigger purpose of your life. छोटे मोटे पर्पस को छोड़ के जब आप अलाइन हो जाते हैं तब आपको ये सब इंडिकेशंस मिल रही हैं कि यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग, पर हम छोटी गेम खेल रहे हैं। It's like you are supposed to be an international star and you are playing a gully cricket. So that doesn't work. You have to play big in your life. Have a big vision. Have a purpose which is bigger, which is worth your life, I would say. ऐसा पर्पस बनाओ which is worth your life, not only one lifetime but many lifetimes. So a very good vision for everybody would be to reach the consciousness of the Sahasrara, crown chakra, self-realized, and don't go by what people throw at you. नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता तुमसे, ये सब, don't take all this shit from people. You are a human being, you are a blessed child of God, you are the gifted child of God, you are born with the birthright है आपका, love, peace and happiness is my birthright, say that, self realization is my right, and start moving. एक बार क्लियर हो गया, जाग गए, तो फिर अब रुकना नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, गिरो उठो, जो होना होने दो, लेकिन रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है और वहां पहुंचना है। There's nothing called impossible. Impossible itself spells I am possible. True. Absolutely. बट उसके लिए क्लियर होना चाहिए। यहाँ बैठ के रूट चक्र में बैठ के आप नहीं बोल सकते मैं दुनिया को बदलूंगा, कुछ नहीं होने वाला है।
तुम पुलिस केस और लॉयर्स और डॉक्टर्स के चक्कर में ही पड़े रहोगे, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल इश्यूज चल रहे हैं तुम्हारे रूप चक्रा में। सेकल चक्रा में तुम अपने प्लेजर और पेन में अटके रहोगे। सोलर चक्रा में आप अपने पावर एंड कंट्रोल में लगे रहोगे। Your life will start only when you reach the unconditional love, forgiveness and gratitude part in the heart chakra. वहां से फिर आप अपनी जर्नी को शुरू करिए। Take the right vision, take the right path. सत्य और धर्म के मार्ग पे चलिए, divine wisdom को पकड़िए, and then oneness with the divine will come. That is what is crown chakra, right? So, how many of you are committed to making that effort and move on to the higher chakras? Yes. So that's the spirit. So with that, we come to the closing of this session. I've already overshot 7 minutes, so I will not take more time. Anything incomplete for anyone? Anybody wants to share something? Yes, Amit ji. So usually every week there is a specific topic या usually generic होता है, जैसे आज वो generic लगा। वो मैं flow में चला जाता है, कभी-कभी specific होता है, we specify that. Today also, in fact, we were planning to have a meditation session, but I went so much into the flow कि वो meditation नहीं हो पाया. So Tony, once again, we will. No problem. Next time we will do that. But for all of you, in case you want to go for the meditation part, I have already uploaded that in my YouTube, and मैंने group में share भी किया हुआ है। तो जो guided meditation है, एक 2 meditation है मेरी जो आप use कर सकते हो। एक golden energy meditation है और एक 7 chakras meditation है जो मेरे YouTube में डला हुआ है। वो तो मैं दोनों करता हूँ। तो Tony, that is what you need to do. There is nothing else that you need to do. अच्छा ठीक है। Okay, मैं बेसिक स्टेप्स बता रहा था आपको कि क्या करते हैं, राइट? ओके। तो वही करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप वो कर रहे हो और आप करते जाओ उससे, you will at least ensure कि आपके प्रेजेंट कर्मास में कोई नेगेटिविटी आपको आपके ब्लॉक्स में ना घुसे। क्योंकि पास्ट लाइफ वाले तो ऑलरेडी मैं आपके हीलिंग करके निकाल चुका हूँ, तो पास्ट लाइफ के ब्लॉक्स ऑलरेडी जा चुके हैं। प्रेजेंट लाइफ में जो प्रेजेंट कर्मा आप कर रहे हैं, राइट? तो पास्ट कर्मा क्लियर है, प्रेजेंट कर्मा पे ध्यान देना। तो ये करते जाओगे मेडिटेशन, सुबह उठ के योग में थोड़ा सा लगोगे, थोड़ा मेडिटेट करोगे, थोड़े भजन सुनोगे, और तो आपका ऑटोमेटिकली प्रेजेंट कर्मा क्लियर हो जाएगा। एंड डू दैट एज ए रिचुअल ऑफ 60 मिनट्स अपना बना लीजिए। सुबह उठ के 1 घंटा अपना मी टाइम, उसमें कोई दुनिया की खबर नहीं, कोई नहीं देखना कहाँ ट्रैक्टर चढ़ा कहाँ चढ़ा, कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है? वो 1 घंटा अपने लिए है। सुबह उठो और सबसे पहले भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ो, 1 घंटा अपने लिए रख लो। उसके बाद 23 घंटे दुनिया में लगे रहो। यू विल हैव दैट एनर्जी। बैटरी चार्ज करनी होती है ना, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करके घर से बाहर निकलते हैं, वैसे अपनी बैटरी चार्ज कर लो एक बार, फिर दिन भर चलेगी वो। बैटरी चार्ज नहीं करोगे और फिर चलाते जाओगे तो एक दिन बैटरी बंद हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो वही है आपके साथ भी, जैसे मोबाइल की बैटरी बंद हो जाएगी वैसे आपकी बैटरी भी डाउन हो जाएगी। तो रोज 1 घंटा अपने लिए चार्ज करो। एफर्मेशंस, बहुत जो लोग मेरे से हीलिंग करा रहे हैं दे नो, एफर्मेशंस मैंने दिए हुए हैं, डू दैट। मेडिटेशन वीडियोस हैं आपके पास, डू दैट गाइडेड मेडिटेशन। लिसन टू एनी वीडियो विच इज मोटिवेशनल, शिवानी जी का सुन लो, संदीप महेश्वरी का सुन लो, कुछ भी, कुछ तो पॉजिटिव डालो अपने अंदर एंड गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन। As I said, meditation is your connection with the divine. And divine के सारे lines free हैं. Anytime you can call. Best time is in the morning. You can't do that in the morning. Do that at night before sleeping. ये भी नहीं कर सकते, दिन में कभी भी कर लो। मेरा तो भैया आफ्टरनून फिक्स्ड है। सारे lines free हैं. Anytime. Every time is good time for connecting with the divine. Don't say सुबह नहीं हो पाया आप कल करूँगा, नहीं, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, जब मर्जी करो, right? So I will not take much time. Let's close this session. So thank you very much for your participation. Wonderful session. Great experience. Thank you, Amit ji. Thank you, Amit ji. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Enjoy a great day. Enjoy a great week. We will meet again next week. Okay, bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye.